السلام علیکم۔ شہر شہر گاؤں گاؤں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فضا ریاض۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں تقریبات ہوئی۔ مظفر آباد میں احتجاجی ریلی سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیریوں کو حقوق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھمبر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سرکاری ملازمین، طلباء، وکلاء، علماء اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ کوٹلی، راولا کوٹ اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں بھی ریلیاں اور جلوس نکالے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار الیاس نے احتجاجی ریلی سے خطاب میں کہا اقوام عالم آگے آئے اور کشمیریوں کو استصواب رائے کا موقع دیا جائے۔ بھمبر آزاد کشمیر میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی ریلی میں سرکاری، غیر سرکاری اداروں، وکلاء، سول سوسائٹی، علماء اکرام سمیت تمام شعبہ زندگی سے افراد نے شرکت کی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں ڈپٹی کمشنر آفس سے کچہری تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ راولا کوٹ میں بھی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت کے غیر قانونی اقدام کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اور ادھر آزاد کشمیر کے ضلع سندھونی بلندری میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ شہریوں نے بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسی بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبد الرحمان خان۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سدنوتی کے علاقے پلندری میں، اور جہاں آج 5 اگست یوم سیاہ کے طور پہ بھارت کی جانب سے جو 370 اور 358 کے خاتمے کے خلاف آج بھرپور انداز میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، جس میں تمام شہری، تمام سیاسی جماعتیں، سماجی جماعتیں، انجمن تاجران اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے اور بھارت کے اس اقدام کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ احتجاج میں بھارت کے خلاف شدید جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی، اور کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی طاقتیں، انٹرنیشنل کمیونٹی اور عالمی برادری اس بات پہ نوٹس لے کہ بھارت نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے، کشمیریوں پہ ظلم، جبر اور جو تشدد کی داستانیں دن بدن قائم کر رہا ہے، اس کے خلاف نوٹس لے اور کشمیریوں کے 70 سالہ اور 72 سالہ جد و جہد آزادی کی میں ان کا ساتھ دے۔ شرکائے کشمیری نے آج بھارت کے خلاف قرارداد بھی منظور کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ درخواست کی کہ کشمیریوں پر بھارت کا جو 370A اور 370 اور 358A کی جو وائلیشن ہے اس کا نوٹس لے کے کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا رائے شماری کا، پلیبیسائٹ کا، وہ حق دے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی شہر شہر گاؤں گاؤں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے بھارت کے غیر قانونی اقدام کی پرزور مذمت کی۔ ریلیوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچموں کی بہار نظر آئی۔ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کے حقوق سلب کرنے کی چال چلی۔ اس اقدام کے خلاف دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوم استحصال منایا گیا۔ کشمیر بنے گا، کشمیر اندر ظلم۔ پنجاب کے تمام شہروں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ وہاڑی، کھانیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، چنیور، چکوال، اکاڑا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں سیاسی، سول سوسائٹی کی شخصیات نے شرکت کی۔ کہروڑ، پکا، بورے والا، ناروال، پیپلا میں شہریوں نے کشمیر اور پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ شرکت کی۔ سندھ بھر میں بھی ضلعی سطح پر ریلیاں نکالی گئیں۔ ٹھٹھا، مہراب پور، سمارو میں بھی شریک مظاہرین نے بھارتی غیر قانونی اقدام کی مخالفت کی۔ خیبر پختونخوا میں شہر شہر گاؤں گاؤں بھارت مخالف ریلیاں نکلیں۔ اٹک، بنون، شہرہ، کالا باغ، مانسہرہ، سوابی، کڑک، مالاکنڈ میں بڑی ریلیوں میں عوام کی بھرپور شرکت۔ بلوچستان میں بھی شہر شہر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ادھر بلوچستان کے شہر سبی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء کا شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے کلمہ چوک تک پہنچے۔ سیاسی، سماجی تنظیموں کے نمائندوں اور دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے رمیش کمار۔
जी, भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों पर अरसा 3 साल से मुजालिम डालने के खिलाफ आज सिबी में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई कलमा चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी समाजी समेत सरकारी ऑफिसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि इस वक्त हमारे साथ DO एजुकेशन मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो भारत की जानिब से कश्मीरियों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, इस सवाल से वो क्या कहते हैं। अरसा 3 साल से हमारे कश्मीरी भाइयों पे भारत की तरफ से जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। इसलिए आज हम पूरे पाकिस्तान में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया पे अक़वाम मुत्तहिदा पे ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि कश्मीरियों पे जो इस्तेसाल किया जा रहा है, जो उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो उनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। तो हम कश्मीरी भाइयों को ये भी बता देना चाहते हैं कि जब तक आपको भारत से आज़ादी नहीं मिलेगी, हम उस वक्त तक आपके लिए आज़ादी के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे। जी। उधर फैसलाबाद में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। ज़िला काउंसिल चौक से कचहरी चौक तक वॉक का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर समेत अरकान असम्बली और शहरियों ने शिरकत की। शौकत वड्डू अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी आज जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जो है वो यौम इस्तेसाल कश्मीर जो है वो के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जो है वो ज़िला कौंसल चौक से जो है वो कचहरी चौक तक जो है वो एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ डिविजनल कमिश्नर ज़ाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज के इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। आज 3 साल मुकम्मल हुए हैं उस जाली कानून साजी को जो हिंदुस्तान ने करके कश्मीरियों को उनकी बुनियादी शनाख्त और बुनियादी इंसानी, समाजी और सियासी हुकूक से महरूम करने की एक साजिश की थी। ये एहतजाज हर गली कूचे में, हर करिए में, गाँव में, शहर में, सूबे में, मुल्क में, पूरे इलाके में और पूरी दुनिया में किया जा रहा है। पूरी कौम जो है वो इनके साथ है, कश्मीरी भाइयों के साथ है। और जो है वो हम जो है वो कश्मीर को ज़रूर आज़ाद करवाएंगे और जो है वो कश्मीरियों को हक उनका देकर रहेंगे। जी। अब आगे बढ़ते हुए कुछ सैलाब और उसकी तबाहकारियों का जिक्र करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 549 हो गई है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। माजी के निस्बत बारिशों में 133% इजाफा हुआ है। सैलाब और बारिशों के बायस 46,000 मकानों को नुकसान पहुँचा है। लसपेला, झलमक्सी, रुझान, राजनपुर, झंग, चनियोट और बास दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध के शहर मोरू में पानी की निकासी नहीं हो सकी है। सड़कें डूबी हुई हैं। सीवरेज का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है। शहरी सरापा एहतजाज है। मोहम्मद अमीन चौहान मज़ीद अपडेट करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों के बायस मोरो शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से मोरो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ दादू रोड, दरस रोड, गचेरो रोड और दीगर जो इलाके हैं उनमें 2 से 3 फुट तक अभी तक पानी जमा हो गया है। मगर मोरो म्यूनसिपल कमेटी ज़िला नौशर और फिरोज़ की वाहिद म्यूनसिपल कमेटी होने के बावजूद किसी भी किस्म का कोई तहरुक नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मोरो शहर के शहरियों ने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर मोरो शहर से गंदा पानी निकाल कर रहा जाए और तालीम का जो निज़ाम है वो बेहतर किया जाए, ताकि जो है तलबा तालीम के जेवर से महरूम ना हो सकें। जी। उधर थरपारकर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बाज़ इलाकों में बिजली गिरने के बायस कुछ मवेशी हलाक हो गए हैं। थरपारकर के इलाके इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से 70 बकरियां मर गई हैं, जबकि दीगर मकामात पर भी बिजली गिरने से जानवरों की हलाकतें हुई हैं। अलबत्ता बारिशों के बाद खुश्क साली में वाज़ेह कमी आई है। कश्मीर के इलाके गुड्डो में बारिशों के बाद सरकारी गंदम खराब होने लगी है। महकमा फूड ने गंदम फ्लोर मिल्स में नहीं पहुंचाई। बारिश और फिजा में नमी के सबब गोदामों में रखी गंदम मजीद खराब होने लगी है। इसी पर बात करते हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुड्डो में महकमा फूड की खरीदी गई गंदम हज़ारों मन गंदम की बोरियां जो है वो बारिश की वजह से ख़राब हो गई हैं। महकमा फूड की गफलत के बायस कौमी ख़जाने को जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। फूड इंतजामिया की जानिब से
खराब गंदम को दोबारा बोरी में पैक किया जा रहा है, जबकि वक्त पर खरीदी गई गंदम फ्लोर मिलों में मुंतकिल न होने के बाद हालिया बारिशों से खराब होने लगी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बारिश और सैलाब के बाद सिंध के कई शहरों में गैस्ट्रो का मर्ज पे काबू हो गया है। नवाबशाह, मीरपुर खास, नौशहर फेरोज और कई दीगर शहरों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गैस्ट्रो के बढ़ते वार, सैकड़ों शिकार। सिंध के कई शहरों में गैस्ट्रो का मर्ज जोर पकड़ गया। नवाबशाह के कस्बे काजी अहमद में बच्ची जाँ भाग। गैस्ट्रो के बायस जाँ भाग होने वालों की तादाद 6 हो गई। नौशहर फेरोज के 12 देहात गैस्ट्रो से मुतासर, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गैस्ट्रो से मुतासरा 3 कम सिन बच्चे जिंदगी हार गए। अहले इलाका का महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था गैस्ट्रो की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। शिकारपुर के सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के योमिया मरीजों की तादाद 200 से बढ़ गई है। मटियारी के तहसील सईदाबाद में 15 दिन के दौरान 800 अफराद गैस्ट्रो का शिकार हो चुके। 4 अफराद जान से गए। मरीज और तीमारदार सहूलियात से गैर मुतमिन। माहिरीन के मुताबिक गैस्ट्रो फैलने की बड़ी वजह मुज़र सेहत पानी का इस्तेमाल है। लकी मरवत में SHO की गाड़ी पर फायरिंग, एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया है। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया है। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लकी मरवत में यह वाक़या पेश आया है जहां SHO की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया है, जबकि जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया है। जफर इकबाल से अपडेट जान लेते हैं। जफर, ये किस तरह वाक़या पेश आया? ये वाक़या कोट का शाहजहां के करीब पुलिस मुकाबले में पेश आया है, जिस पर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है, जिसको सायनौरंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां से उसके ट्रीटमेंट जारी है। और पुलिस मुकाबले में एक हमलावर भी हलाक किया गया, जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेके मजीद तफ्तीश जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मर्दान की तहसील तख्तपाई में जंगली जानवर से एक और बच्चे पर हमले करके जख्मी कर दिया। जंगली जानवर ने चिरागदीन कले में 4 साला बच्चे पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जानवर खेतों में छुपकर कम उम्र बच्चों पर हमला कर रहा है। कुछ दिन पहले भी जंगली जानवर ने एक बच्ची पर हमला करके उसे जान बहक कर दिया था। बुरेवाला में डाकू बेलगाम। थाना मॉडल टाउन की हुदूद में डकैती की वारदात। 2 डाकू असले के जोर पर मुबैना तौर पर शहरी से 25 लाख लूट कर फरार हो गए। दोनों डाकू फायरिंग करते हुए भाग निकले। नियो न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। गुजरांवाला में डकैती वारदात की CCTV फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में डकैतों को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। दोनों नौजवान खरीदार बनकर स्टोर में दाखिल हुए। मुलजिमान ने असलहा तान कर दुकानदारों को यरकमाल बना लिया। लूटमार करके मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। बेटे के कत्ल ने वालिदैन की जिंदगी उजाड़ दी। मीरपुर खास में चंद रोज कबल निशाना बनने वाले 16 साला लड़के के वालिदैन बेबसी की तस्वीर है। माँ बेटी का यूनिफॉर्म और मेडल्स देखती है तो आंखें भर आती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल महमूद। वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा, माँ की आगोश में सर रख कर अपनी फरमाइशी पूरी करवाने वाला 16 साला हमजा घर से दूध लेने निकला तो माँ अपने बेटे की राह ही तकती रह गई। 1 अगस्त की शब घर से निकलने वाला 16 साला हमजा की अगले रोज 78 मोरी जमड़ाओ कैनाल से गला कटी नाश मिली तो बाप के पांव तले जमीन और माँ की जैसे दुनिया ही लुट गई हो। उसको सिर्फ एक ही शौक था कि मैं पापा मैं आर्मी में जाऊंगा। सबसे बड़ा बच्चा था, ये 16 साल का बच्चा था। 16 साला हमजा की गम से निढाल माँ बेटे के स्कूल यूनिफॉर्म, मेडल्स और ट्रॉफियां हाथ में उठाए बेटे की वापसी की उम्मीद लगाए अपनी नम आंखें दरवाजे पर जमाए बैठी है। मेरा चांद सा बेटा मैं कहां से लाऊंगी, और शौक रखता था मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं आर्मी फौज में जाऊंगा। हमारे को स्कूल भी छोड़ के आता था, हमें हर जगह लेके जाता था। पुलिस की जानिब से वालिदैन को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की उम्मीद दी जा रही है, ताहम अब तक मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका है। बिलाल महमूद, न्यू न्यूज़, मीरपुर खास।
झुड्डू में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिले इंतजामिया ने कई ताजरों पर जुर्माने आयद कर दिए हैं। कार्रवाइयों के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज है। शकील मुजाहिद की रिपोर्ट। झुड्डू में महंगाई की रोकथाम के लिए आटा चक्कियों और करियाना स्टोर्स पर छापे, इंतजामिया ने जुर्माने आयद कर दिए। इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिला जवाज जुर्माने आयद करना नाइंसाफी है। ताजरों का कहना है कि अशिया मार्केटों से महंगी दस्तयाब होती है। इंतजामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल फहरिस्तें भी नहीं दी जाती। इख्तियारकार साहब जो है झुड्डू तालके के, वो बिला जवाज जो है वो शहर के अंदर आकर और नो कोट के जो व्यापारी हैं उनकी दुकानों के ऊपर रेट लिस्ट के नाम के ऊपर छापे मार। एक चीज उनकी 100 रुपए की आई हुई है, वो 105 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनको वही चीज 125 रुपए की आगे से मिल रही है। ताजरों ने ऐलान किया है कि बिला जवाज कार्रवाइयां होती रही तो कारोबार बंद करके सड़कों पर आ जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शकील मुजाहिद, न्यूज़ झुड्डू। बड़ी में टीचर्स यूनियन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावलपिंडी के रवैये के खिलाफ एहतजाज। टीचर्स यूनियन का वज़ीर आला पंजाब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावलपिंडी का तबादला करने का मुतालबा। ताज बुखारी अपडेट करेंगे। जी मौजूद हो इस वक्त में मलका कोसार मरी मार रोड के ऊपर, जहाँ पे आज टीचर यूनियन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि टीचर्स हज़रात भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका मसला क्या है और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। हमारे जो सीओ हैं वो एक करप्ट इंसान है, आज़म काशिफ, और हम चाहते हैं कि वो फ़ौरन से उसको निकाला जाए, क्योंकि वो एक करप्ट ऑफिसर है और वो टीचर्स की इज्जत बिल्कुल टीचर्स की इज्जत नहीं करता। इनका कहना ये था कि हम अपनी तनख्वाहों के लिए या अपने स्केल के लिए इस वक्त जंग नहीं कर रहे, बल्कि करप्ट ऑफिसर के खिलाफ जो है वो जंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ख़वातीन जो टीचर्स हैं उनके साथ इंतहाई उनका रवैया हतक अमेज़ है और यही हालात उनके टीचर्स के साथ हैं। हमारे जो उस्ताज़ा गिरफ्तार हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। चेहलम की तहसील पिंड दादन खान में भी लंपी स्किन बेकाबू है। मवेशी मालिकान ने महकमा लाइफ स्टॉक से वैक्सीनेशन तेज करने का मुतालबा किया है। सलीम बागड़ी रिपोर्ट के साथ। लंपी स्किन के कातलाना वार जारी, मुतअद्दिद जानवर हलाक हो गए। मवेशी पाल हजरात परेशान हैं। पिंड दादन खान के इलाका अहमदाबाद, सौडी, गुजर, सवाल और कसलिया में लंपी स्किन से दर्जन से ज्यादा जानवर हलाक हो गए। मवेशी पाल अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। मवेशी पाल मालकान का कहना है न ही इलाके में मोबाइल टीमें मौजूद हैं। लैम्पी स्किन की बीमारी हमारे इलाके में जानवरों में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इसका कोई तदारक किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वेटनरी डॉक्टरों को कहें कि कोई वैक्सीनेशन वगैरह का कोई एहतमाम करें। मालन बीमारी आई हुई है, माल उस नाल मरदे पे नो, साडा तो कारोबार भी ये है। मेहरबानी करके गवर्नमेंट जी है इसकी हेल्प करे। महकमे लाइफ स्टॉक की गफलत के बायस मजीद जानवर हलाक होने का खदशा है। मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है मोबाइल टीमें भेजकर जानवरों की वैक्सीनेशन की जाए। कैमरामैन मुंतजिर मेहदी के साथ चौधरी सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान। पतोकी के बाजार में आग भड़क उठी है। कई स्टॉल्स लपेट में आ गए हैं। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से 3 सियासी मुशीरों का तकर्रुर कर दिया है। 3 सियासी मुशीरों की फौरी तौर पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उमर सरफराज चीमा, मोहम्मद अयाज खान नियाजी और नवाबजादा वसीम खान जो सियासी मुशीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी पर बात करते हैं। न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, ये तकर्रुरियों के हवाले से बताइएगा, कौन कौन सी अहम जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई हैं? जी बिल्कुल फिजा, वज़ीर पंजाब ने मजीद 3 सियासी मुशीर तैनात कर दिए हैं। इनमें साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और मुल्तान से रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा वसीम खान पादोज़ई और अयाज नियाजी शामिल हैं। इन तीनों का आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले एक सियासी मुशीर आमर सईद राह की तकर्री की गई थी। इसके साथ साथ कल 21 रुकनी काबीना भी अपना हलफ उठा रही है। इस तरह वज़ीर पंजाब के इस वक्त तक 21 वज़ीर हैं और 4 सियासी मुशीर हैं। जो 4 मुशीर हैं इनको अपॉइंट कर दिया गया है, जबकि 21 वज़ीर जो है ये कल गवर्नर हाउस में अपना हलफ उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। शहर भर में सबसे लाली परचमों की भरमार है। मोहम्मद शबान अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो अरूज पर जारी हैं। इस वक्त जो है सादिकाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे बड़े सब जो है यहाँ पर झंडे झंडियाँ बैजत के खरीदारी में मसरूफ़ हैं। वालिदैन के साथ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो पीछे जो है वो स्टॉल सजे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे भी जो मौजूद हैं, बिस्मा भी यहाँ पे आई हुई है और बच्चों बड़ों के साथ साथ यहाँ बच्चे भी जो है वो स्टॉल में खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इनका कहना है कि जश्न आज़ादी को इस बार जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में वालिदैन जो है वो बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश जो है वो पूरी करने में मसरूफ़ है। झंडियाँ खरीदी जा रही हैं, बड़े झंडे जो है वो घरों को सजाने के लिए खरीदे जा रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार जो है वो जश्न आज़ादी का शबान भी सबसे लाली परचम में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।